everyone, welcome back to our YouTube channel, and I'm super excited today to welcome our second guest. Yes, she is Sunidhi Malla. In this episode, you will get to know the incredible fat loss journey of Sunidhi. Her transformation is just crazy. All gave a warm welcome to Sunidhi. I'm sure you are going to love the energy and the conversation. So do watch this episode till the end. I'm sure that you are going to love it. Let's get started. Nidhi to the Womania podcast. So, first of all, thank you so much for receiving our request. And we are so much excited to have a nice conversation, have some chit chat, and also to know about you, your story, and everything which is related to you. So, welcome, first of all. For inviting me. Thank you for reaching out and ये platform देने के लिए thank you so much. I think this is a very good deal to, not in monetary terms, but very good deal in the sense of to encourage people, to talk to people, to let people know my story and why I'm doing what I do and how it helps me. I think there's a lot people can take. Abhi, I'm not that level पे, but still there are people I think who look upon stuff and I think I can talk about it. So Many of the people who will watch this video, they know you from the first, but for the people like who is seeing you for the first time, so just introduce yourself, tell them who are you and what you do actually on the internet. How was your journey? How did you start it? Like, tell us everything, like we need to know. so everything is a kind of a big word. वो तो लेके पूरा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बंदे सो जाएंगे, हम पूरी बात करेंगे. तो I'll come to the gist. जो हमारा मेन टॉपिक हम जिस पे बात कर रहे हैं, I think we'll just stick to that. People don't need to know my professional life इतना deeply. But what they need to know is like I'm 23 years old. I started my weight loss journey when I was 19. Okay. And my highest weight was 116. Because we are just talking about my journey, my health today, I think I'm gonna start from there. Sure. 116, and I'll share the picture with you. Maybe you can put it somewhere in your clip. I looked like that for majority of my life. मतलब एक 16 साल का बच्चा कम से कम आराम से 27, 28 where I started. You asked me about my journey, how I started. I started, देखो अभी सब जो टीन्स होते हैं, ठीक है, टीन्स की नई नई जॉब लगती है. मेरी भी नई नई इंटर्नशिप लगी थी इकोनॉमिक टाइम्स के साथ और मेरा पहला सैलरी आया था. पहले सैलरी से 10,000 रुपए था मेरा वो पहला सैलरी. और मैंने सबके लिए घर में गिफ्ट लाए, ठीक है, मम्मी पापा सबके लिए गिफ्ट लाए मैंने. और जो Good खुद job. के लिए मैंने खरीदा था, that was a marshmallow hoodie. That was brown in color. It was a beautiful hoodie and I loved it, absolutely loved it. पर क्या हुआ ना, इट वॉज द बिगेस्ट साइज अवेलेबल ऑन Amazon क्योंकि आई वॉज लाइक बिग बिग पर्सन. सो आई परचेज दैट एंड व्हेन आई वोर इट, वो आ तो गई लेकिन इतनी गंदी तरीके से वो मुझे आई. आई शेयर द पिक्चर विद यू, वो वाली भी बहुत खराब फिटिंग. आई मीन आई वॉज स्टक इन साइड एंड हाइट वॉज इससे बड़ा साइज Amazon पे अवेलेबल नहीं था. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट. आई मीन आई वॉज लाइक भाई अगर ये मुझे फिट नहीं आई तो दुनिया का कोई कपड़ा अब मुझे फिट नहीं आने वाला. बिकॉज मार्केट में तो कपड़े मेरे मिलते ही नहीं थे. कि अब तो Amazon ने भी गिव अप कर दिया कि Amazon के पास भी इससे बड़ा साइज का कपड़ा नहीं है. स्टक पॉइंट. और ऐसा नहीं है, बचपन से मैंने कोशिश नहीं की. मेरे मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की बचपन से कि भाई ये लड़की थोड़ा वेट लूज कर ले. VLCC, पतला होने वाले तेल, क्रीम, मसाज, सब सब कुछ जो जो आप कह सकते हो ना, वो मैंने ट्राई किया. स्लिम सोना बेल्ट जो आती थी, ग्रीन टी, पता छिलके खाया करो सुबह सुबह जब पहले बोला करते थे. कुछ नहीं होता. सब कुछ किया भाई, सब कुछ किया. नथिंग वर्क ऑब्वियसली. दीज थिंग्स डू नॉट वर्क. Do not work. Yeah. अब एक्सपेक्ट किया, कुछ भी जब नहीं हुआ तो घर वालों ने मुझ पे ये कहते भाई जब ये लड़की बड़ी होगी उसको खुद ही अकल आएगी, शी विल डू इट हरसेल्फ. एंड दैट एक्चुअली केम ट्रू. आई मीन एवरीबॉडी केप्ट ऑन मैनिफेस्टिंग कि जब ये बड़ी होगी इसे खुद अकल आएगी, खुद अकल आएगी, खुद अकल आएगी. फिर क्या, जब आएगी आती रहेगी. बट वो हुआ. दैट एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड व्हेन लाइफ ऐसा झटका दिया ना कि भाई आई विल बी अब क्या? क्लोज. अब क्या, अब क्या? या. तब मैंने डिसाइड किया कि भाई फिर ये सारी चीजें ऐसा साइमल्टेनियसली होती गई. दिवाली का टाइम था, उसके बाद फिर मेरी कजिन, एक बार हम रैंडमली बात कर रहे थे, ये स्पार्क तो लग गया, 2-3 दिन बाद में भूल गई.
अब एक दिन मेरी कजिन ने मुझे शाम को फोन किया, एंड वी जस्ट केप्ट ऑन, वी वर टॉकिंग एंड टॉकिंग, एंड देन आई जस्ट shared this thing with her कि I bought a beautiful hoodie. We both are marshmallow fans. So I bought this beautiful hoodie, but it did not fit me. What do I do? So she said कि मतलब she kind of pushed me कि भाई why don't you join the gym? And जिम से प्रॉब्लम पता है क्या थी मुझे? बचपन में मैंने जिम ज्वाइन किया था, बट व्हेन आई वाज व्हाट 14 15, जिम ज्वाइन किया था इन द सेंस कि मम्मी पापा ने जबरदस्ती की जिम जाएगी तो पतली हो जाएगी करके भेजा। पर यार पीपल कैन बी मीन टू यू एंड दे डोंट रियलाइज इट कि वो उनका एक स्टेटमेंट कैन डू so much harm to the other person, especially when you are talking to a kid who has just entered her teen. So Hmm. remember, and I was 13 or 14, and ladies were mean to me, like totally brutal. So I did Since not had a very good. since 13 or means since 13 joined the gym. I did join the gym at the age of Okay. 13 because I was fat since I was a kid. I was born Okay. 5.5 kgs. ठीक है, बट Hmm. जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, एंड मैंने बड़ा गोलू मोलू प्यारा सा सफेद बच्चा पैदा हुई थी, एकदम कश्मीरी Hmm. बच्चा। ठीक है, सफेद बच्चा पैदा हुई थी, लेकिन लेटर इन लाइफ क्योंकि आपकी आपके हॉर्मोन्स ही ऊपर नीचे हो गए हैं, तो योर बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग द वे इट वाज सपोज टू रिएक्ट कंपेयर टू। आपने ओल्डर पिक्चर नहीं देखे, इफ यू सी यू विल बी लाइक ये क्या है। तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड, एंड I did not look really nice. So I remember this one statement from a lady at the gym. She saw my mother because my mother, she used to come from office and sit outside the gym वो 1 घंटे के लिए, जब तक मैं वर्कआउट करूँ, क्योंकि आई वाज अ किड, मुझे घर अकेले जाना नहीं आएगा। Hmm. तो वो ऑफिस से आके मुझे जिम ले जाती थी और वहीं पे 1 घंटा बैठती थी। So I remember once this lady, she asked my mother on my face, is she your real daughter? And did you adopt her? And I was like, This really? is worse. And This is worse. I kept looking at my mother, and she see, it was really humiliating, embarrassing, not for me, I was a kid, for my parents. So that is one memory I will never forget, that this lady asked my mother. That was the first time. It was not the last time. A lot of people Okay. kept on asking me over the years. I've heard, ये तेरी बेटी है? दिस इज व्हाट माय मदर। हम गाड़ी से जा रहे थे तो चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, एंड आई वाज सिटिंग इन फ्रंट और बेल्ट लगाया हुआ था। बेल्ट ना मुझे फिट नहीं आता था ठीक से मेरे को। आई वाज सो फैट पीपल विद विल रिलेट विद मी। जब आप बेल्ट पुल करते हो वो मुझे कम पड़ जाता था, तो वो मुझे फिट नहीं आता था, तो मैंने ऐसे करके उसको एंटायर रास्ते में पकड़ के रखती थी। मुझे आगे बैठना बड़ा पसंद था, तो मैंने पकड़ा हुआ था, और चालान वाले ने भी आई आई डोंट नो ही नोटिस दैट, और वाइड, हाँ, द गाड़ी का नंबर वाज दिल्ली का नंबर, तो मेरठ में दिल्ली का नंबर कभी कभी रोकते थे। तो उसने रोका और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था बेल्ट, तो उसने बोला इसने बेल्ट नहीं लगाया, चालान कटेगा। एंड देन माय फादर टोल्ड हिम कि वो नहीं है ऐसा, पूरा प्रॉपर नहीं है। तो देन ही स्टार्टेड सेइंग यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर किड, ये तुम्हारा बच्चा है, कितना मोटा है, तुमने क्या कर दिया इसको, आई मीन तुम उसका ध्यान नहीं रख। एंड ही स्टार्टेड सेइंग, uttering all sort of rubbish. He was not supposed to say all that stuff. I was a kid again. I was not that old, 12, 13 ऐसा ही। I felt bad for my father because, and all the years I kept thinking कि मैं क्या, I have I have humiliated my parents so much. This is what I grew up with. I grew up with this regret all the time that I am a burden to my parents, because all of them, the other people around, they have been complaining. They have been saying stuff you are not supposed to say to a kid. So I grew up listening to things. Where I started from, I started Hmm. from that hoodie, that phone call which pushed me to join the gym Join the gym. again. क्योंकि पुराने वाले एक्सपीरियंस मेरा इस बार मैं डरी हुई थी जब जिम ज्वाइन कर रही थी, बट आई डिड नॉट ज्वाइन इट किसी और के कहने पे। आई डिड ज्वाइन इट बिकॉज आई वाज डेस्परेट इनफ दिस टाइम। एक तो कपड़े नहीं आ रहे, ऊपर से ये सारी चीजें मुझे बार बार इट 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 डज Hmm. डैमेज टू योर ब्रेन बिग टाइम। So this is to summarize my journey. Yeah.
सो लाइक यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक जिसपे ना एक कोट बहुत अच्छा सूट करता है, एंड वो कोट ये है लाइक, इफ यू बिलीव देन यू कैन मूव द माउंटेन, एंड यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल. I'll just quote it this thing for you, that if you believe it, then you can move the mountain, and which you actually did it not for anyone but for yourself. And I think that's completely a brave move by you. Thank you. So so now means इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते, लाइक you have shared your transformation journey, that how it actually started. But Mm. I know, like when you are showing yourself on the social media, and when you started the your content journey, so in the beginning or still abhi bhi, like you must have got some hate or the negative people on your side. Like I have seen some people like in the comment doing some shit things, but I would like to know that how did you see all these haters, all negativity? How do you see this? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये कुछ भी नहीं है. जिस तरीके का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि वो बंदों ने मेरे Hmm. मुंह पे आके मेरे को हेट दिया है. these people these people are just, maybe some bot accounts, some teenagers who are just free. They have a lot of time in hands and they're just Hmm. scrolling down. They mean nothing to me. That's the whole point, because what I have faced is way too much. Way too much. Like, I mean, the This is example I nothing. told This you, is people, nothing in yeah, front of what this is you have gone through. absolutely nothing. They are just bot accounts that are trying to have fun, maybe just gain. I have seen a few. See, whenever you now, I am very new to Instagram, new to the Instagram in the sense, new to this content creation thing. So जब भी Okay. कोई comment आता है, of course I have this curiosity कि भाई किसने किया है, देखना क्या है. किया है. And जब बस time होता है, I do click on the accounts and I see, and there are actually people with like good followers, 500 600, and they are like commenting absolute shit on my post. तो देयर आई अंडरस्टैंड, कुछ कुछ अलग दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स इन द सेंस कि फिटनेस का पेज चला रहे हैं एंड दे हैव देयर ओन ओपिनियंस. बट ओपिनियन होना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे को गलत बोलना गलत है. अभी आप गलत. कंटेंट क्रिएटर हो, यू हैव ऑल द राइट टू शेयर व्हाट यू थिंक. What do you think? बट ऑन द सेम हैंड दूसरे बंदे को, तू कितनी मोटी है, ये एक्सेट्रा है, ये है, दिस डज नॉट गो, यू डोंट हैव द राइट टू दैट. So to sum up, like your biggest challenge was in the beginning, like ऐसा बोल सकती हूँ, like इतने छोटे से ही हुए आपने इतनी सारी चीजें मीन्स देख ली, एंड यू वेंट थ्रू सो मच ऑफ थिंग कि उसके बाद जब और लेवल अप चीजें आप बोलो, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, राइट? डिपेंड करता है कौन बोल रहा है. ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है. फर्क अनजान लोगों से नहीं, वो क्या सोचते हैं उससे नहीं नहीं. या फर्क पड़ता है मेरे घर वाले क्या सोचते हैं. सी, इफ वी टॉक अबाउट सपोर्ट सिस्टम, दे हैव बिन द रॉक. आई मीन, माय पेरेंट्स, जितना उन्होंने फेस किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ऑनेस्टली. मैंने जो किया, मैं एज अ बच्चा थी, हाँ हाँ हु करके निकल गया. वो अब समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी चीजें थी. पर इमेजिन बीइंग अ पेरेंट एंड टोल्ड कि भाई तुम्हारा बच्चा इज नॉट वर्थ इट, योर kid is ugly, your kid is bad, your kid is not like other kids uski age ke, is different, she is different. It's not easy for a parent to listen all that stuff about their kid, but how they did it, I don't know. And तो फर्क पड़ता है लोगों से नहीं, घर वाले क्या सोचते घर. हैं उससे. Your in your entire journey, like your biggest support system is your parents. ऑफ कोर्स वो सब यही बोलते हैं ना, मतलब सबके लिए अपने माँ बाप ही उनका रॉक होता है ना, मतलब वो नहीं तो कुछ भी नहीं. Hmm. Of course, that goes without saying. My family, my sister, she has done a lot. She still does a lot of stuff. मैं फोन कर चुकी, भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज सब कुक समथिंग फॉर मी, बिकॉज आई लाइक ईटिंग होममेड मील्स. आई एम नॉट अ पर्सन जो बाहर से कुछ भी ऑर्डर करके खा लेगी. तो Just कुछ a भी second. बना दे, मैं खा लूँ. What is your diet routine also? What you eat in a सी, day? डाइट, Hmm. मैंने कभी भी कोई फैट डाइट नहीं की. मैंने Okay. हमेशा, जब मैं 116 किलो की थी, 69 तक गई, 69 से 84 तक आई, 84 से अब वापस आई एम ट्राइंग टू लूज, आई एम समवेयर अराउंड 74, 73, 74. तो अभी ऑल दिस वाई, चाहे वो गेनिंग हो, चाहे वो कटिंग हो, बल्किंग, कुछ भी हो, मैंने कभी भी रोटी दाल चावल नहीं छोड़ा. रिमेम्बर रीडिंग वन ऑफ योर क्वेश्चंस वेयर यू वर लाइक
जो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ड्यूरिंग देयर वेट लॉस, वो Yeah. सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस नहीं। देयर Yes. इज अ what people make mistake is they start their weight loss journey. I remember I met this girl at the gym who abhi I think day before yesterday told me that for 8 months she was on a liquid diet. My God. I couldn't believe what I just heard, and I was like, are you kidding me? You said 8 months on liquid diet, like on Liquid soup, diet. water, fruit juice. I thought it was miserable. She landed up in a hospital, and of course, Yeah. यही होता. Mm-hmm. She lost major chunk of her weight, ठीक है, but she But landed up in a hospital and then she gained all that weight back. दिस इज अ मिस्टेक व्हाट वी डू. हम लोग जल्दी के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. और हमारे ट्रेनर्स, अगर हम वी आर हायरिंग अ ट्रेनर, आजकल वो लोग mm-hmm. भी बड़ी जल्दी के चक्कर में कुछ भी करा देते हैं. कुछ भी. रियली रियली ready, I would say. When you are Mm-hmm. actually ready to start your fat loss journey, first of all you have to invest in a good In a. personal trainer, somebody who has the proper knowledge and who can guide you enough. माय केस, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अभी सपोर्ट सिस्टम पे वापस जाते हैं. पास ना इतना पैसा नहीं था कभी भी. नॉट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली. Mm-hmm. सो जिम फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार, अभी जब मैं 19 साल की हो गई थी एंड आई वांटेड टू गो टू द जिम ऑन माय ओन, मैंने आई डिड नॉट हैड द मनी. एक तो जिम की मेंबरशिप सारा जो भी 19 ईयर्स से टचवुड आज तक की उम्र में जो भी है, जिम का सारा पैसा मैंने खुद दिया. चाहे Wow. वो मेरी इंटर्नशिप से मैंने सेव किया हो, Mm-hmm. चाहे मैंने बचपन से अपने को पिग्गी बैंक में सेव किया हो, प्रोटीन से लेके कैल्शियम विटामिन सबका खर्चा मैंने खुद देखा है. आज तक मैं उतना ही करती हूँ जितना मेरे जेब में पैसा रहता है. और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं पर्सनल ट्रेनर हायर कर पाऊँ इस बार. एंड मेरे घर वालों के पास भी ऑनेस्टली इतना पैसा नहीं था कि वो एक, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर की Personal फीस बहुत trainer. होती है Yeah. और वहाँ बहुत उस होते. टाइम 10-10 हजार रुपए थी. मेरे पास उतना पैसा नहीं था ऑनेस्टली. लेकिन आई मेट दिस वंडरफुल गाय, हिज नेम इज विकी. Okay. He helped me. He helped me immensely. He's a वो भी. personal He's a trainer trainer. and Mm-hmm. first he's a trainer. And Mm-hmm. when I went to the gym, he saw me and he saw 116 on the scale. And his first reaction was, she needs to lose major chunk of her weight. Like if I am being accurate, almost 50 kgs. She needs to be half her size. कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी हेल्थ पे, क्योंकि छोटी Later है, on. बड़ी होती जाएगी, Mm-hmm. उसकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा. He did not charge me a single penny. ये तो बहुत ही Never. रेयर है. Like. You don't get people like these. Never. Yeah. You don't get people like these. For me, he is God. I was a clueless person walking around. He corrected me. He helped me. He still does. So in Wow. now he's in Meerut. He's in where I have moved, but I am Mm-hmm. still in touch. And every time I visit Meerut, I make sure I'm visiting that old gym because that is my home place. Yeah. And the trainer, because he has been really supportive. तो ऐसे लोगों का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी बहुत होता ज्यादा है. इम्पोर्टेंट है. सपोर्ट सिस्टम में बात की जाए तो सपोर्ट सिस्टम मेरा इंस्टाग्राम भी बहुत रहा है. मोटिवेशन की बात करते हैं ना, मेरे पास मोटिवेशन नहीं था, मेरे पास हम्म. कोई चॉइस नहीं था, और मेरा डेस्परेशन था कि भाई मुझे तो वेट खत्म करना ही लूज है. करना है. हम्म. तो लेकिन कभी कभी एक बार पता है आपकी लाइफ में आता है टाइम यू आर लाइक अब क्या, आगे क्या. 69 किलो की हो गई थी मैं, उसके बाद मेरा वेट 4-5 महीने तक हिला ही नहीं. तो अब मैं क्या, आगे क्या करूं, अभी क्या करूं. भैया ने कहा करती रहे, होगा धीरे धीरे चेंज योर हम्म. डाइट एक्सेट्रा. बट एक वो स्टैग्नेंट पॉइंट आता है ना, तब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और इंस्टाग्राम पे आई स्टार्टेड शेयरिंग माई जर्नी विद द मोटिव कि भाई करते हैं, देखते हैं अपनी खुद की जर्नी, अपने खुद को. नॉट फॉर पीपल, हमेशा से यही पॉइंट रहा है आज तक भी और आगे भी रहेगा कि इट इज फॉर मी, माई रिमेम्बरेंस एंड नॉट फॉर हम्म. एनीबॉडी एल्स. मैं छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां भी डाल देती हूँ. लाइक बाइक पे मुझे बैठने नहीं होता था, आज मैं हम्म. आराम से चढ़ के बैठ जाती हूँ. ये इसकी भी मैंने रील डाली क्योंकि इट इज अ बिगर थिंग फॉर मी ना. पीपल हु आर और हैव बीन फैट, दे विल रिलेट कि हमको स्कूटी पे, बाइक पे चढ़ने में कितनी तकलीफ होती है. तो आई एम डूइंग दिस फॉर मी एंड पीपल हु रिलेट, आई लव दैम. यू आस्क्ड मी अबाउट माय डाइट. हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन डाइट का रैप अप कर रहे थे. हम्म. डाइट
हाँ, मैंने कभी भी कोई क्रैश डाइट, लिक्विड डाइट, एक्सेट्रा डाइट मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैंने कोई फैट बर्नर कभी नहीं लिया। लॉट ऑफ पीपल दे डोंट बिलीव इट, दे फाइंड इट रियली हार्ड टू बिलीव कि आई हैव नॉट टेकन अ फैट बर्नर, बट इट इज ट्रू, आई हैव नेवर टेकन अ फैट बर्नर। आई हैव ट्राइड प्री हम्म। वर्कआउट, बट उसने ओके। मुझे खुजली कर दी। और खुजली कर दी तो मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा था, कि आई वाज लाइक जस्ट लेट मी बी इन पीस। ये जो एक्सेट्रा सप्लीमेंट्स में आई जस्ट ट्राइड फैट प्री वर्कआउट, नॉट अ फैट बर्न। आई वाज टोल्ड वंस कि ये जो तेरी लूज स्किन है, आप देख सकते हो, ये लूज हम्म। स्किन है, ये फैट बर्नर से चली जाएगी, स्टेरॉइड्स ले ले वो चली जाएगी, बट बट आई वुड rather कीप दिस देन मेसिंग अप विद माई सिस्टम। सिस्टम। डाइट हमेशा मेरी सिंपल रही है। मैंने एक ही रूल फॉलो किया है, घर का खाना। आप बाहर रहते हो ना, आपके पास इतने ऑप्शन नहीं रहते, मतलब या तो ऑप्शन नहीं बाहर से ऑर्डर रहता। कर लो, सैलरी होती नहीं, और ये हेल्दी खाना बाहर क्या कर रहे हैं वो लोग हमको नहीं पता है। तो घर हम्म। पे चाहे मैं 4 रोटी खाऊं, लेकिन मुझे पता है मैं घर का खुद का बना हुआ साफ बना खा हुआ रही है। हूँ, दैट इज फाइन। और अभी जब आप घर के बाहर रहते हो तो कुछ तुमको खुद करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो जल्दी खाना बन जाए, और मतलब बस खाना हो जाए, मेरे को टेस्ट वेस्ट का नहीं होता, बट ये कि न्यूट्रिशियस हो, घर का हम्म। हो, मैं बनाऊं तो ज्यादा अच्छा है। जब मैं मेरठ में भी थी ना, while I was on my weight loss journey, ऑल्दो घर पे खाना बन रहा था और सब बना भी देते मेरे कहने पे कि तेल मत डालो, ये मत डालो, हम्म। बट सबसे बड़ी एडवाइस जो बंदा अभी अपनी फैट लॉस जर्नी पे जा रहा है उसको मैं ये दूंगी कि अपना खाना खुद बनाओ। बना। नंबर वन, उससे क्या होगा, तुम्हारा कैलोरी बर्न होगा, तुम थोड़ा अपने शरीर को तकलीफ दोगे तो तुम थोड़ा काम हम्म। करोगे। काम सेकंड, करो। तुमको पता है कि तुम्हारे शरीर में क्या जा रहा है। क्या। अच्छा यू है। आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मदर, योर ग्रैंड मदर, योर सिस्टर, योर वाइफ टू feed you. You should हम्म। be taking care of your nutrition on your own. उसमें तुमको पता है, तो जो भी शुरू कर रहा है मैं उसको ये बोलूंगी कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखो, खाना खुद बनाओ और घर का खाओ, तो तुम सेट रहते हो। एंड ऑल्सो लाइक हमारे ऑडियंस को आप बताओ, लाइक एक दिन में कितने आवर्स जिम जाते ये मैं हो, घर वर्कआउट पे करते हो। वर्कआउट करते हो, हाँ वो एक हाँ, बता दे। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को है, और सोशल मीडिया से सबको ये लगता है हम्म। कि ये बंदी पूरा दिन पूरा दिन जिम में जिम बैठी रहती करती है, है, बट हाँ नहीं। हाँ। आप देख सकते हो, आई एम इन द मिडल ऑफ माई ऑफिस। वर्किंग आवर्स, हम्म। सो I have this job, I have to take care of that as well. तो मैं कितना वर्कआउट करती हूँ, मैं हफ्ते में कोशिश करती हूँ 5 से 6 दिन में जाऊं, एंड आई फोकस मेनली ऑन वेट ट्रेनिंग। राइट। कार्डियो मैं करना अभी शुरू करी हूँ, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ फैट लॉस रीजंस, बिकॉज कार्डियो इज गुड फॉर योर हार्ट, बट सो ओके। योर फ्लेक्सिबिलिटी, यू नीड टू स्वेट। तो हम्म। कार्डियो इज गुड, एंड कार्डियो ये नहीं कि जाके मैं जिम में पागल की तरह भाग रही हूँ, नहीं, आई जस्ट वॉक, इंक्लाइन, आई साइकिल, आई डू द एलिप्टिकल, आई मूवमेंट स्किप रोप। मूवमेंट ऑफ बॉडी। Yeah, because your heart needs to know that you have to run Baba for another 50, 60 हम्म। years. They just have to keep telling it कि भाई है। ऐसे ऐसे धड़क धड़क कर। तो cardio really helps me clear my mind. It helps me, think. Walking helps me think. चाहे वो किधर भी walking, I would rather prefer doing cardio like walking in the open space. But आजकल मुंबई में बारिश बहुत हो रही है, तो open space का मतलब ही नहीं है। तो अभी आजकल I go to the gym in हम्म। the evening. आधा घंटा, 30 minutes ऑफ कार्डियो, हफ्ते में 2 या 3 बार। वेट ट्रेनिंग, आई डू पुश पुल लेग्स 1 hour इन द मॉर्निंग बिफोर कमिंग टू वर्क। 1 hour your weight training and 30 minutes the cardio one. But not Not every day, every day. 30 minutes not every day, 2 or 3 times whenever I am free, I have time. But yeah, I make sure that I walk a lot the Or entire walk. day. हम्म। मतलब 1 घंटा, अगर मैं 1 घंटा जगह पे नहीं बैठ सकती, आई कीप ऑन वॉकिंग, आई कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। सो आई एंड ऑल्सो नाउ वी हैव स्टार्टेड, लाइक आवर ऑफिस इज ऑन 7th फ्लोर, तो हम लोगों ने Okay. शुरू किया नीचे 0 से 7th फ्लोर पे आना भी बाय स्टेयर्स, सो By वी stairs, आई yeah, ट्राई that टू helps. बी हम्म। एक्टिव द एंटायर डे, दैट इज व्हाट कार्डियो इज। मतलब जिससे भी तुम्हारा घुटना उठ रहा है वो कार्डियो है ना, तो हम्म। कीप डूइंग इट, यू डोंट हैव टू रन ऑन द मशीन्स। दैट्स मीन्स दैट्स ग्रेट, लाइक बहुत लोगों को लगता है लाइक वो जितना अमाउंट ऑफ टाइम दे जस्ट गो टू द जिम, दे जस्ट वर्कआउट, दे लूज वेट, बट ये इट्स अ तुमको मिथ, दो या। दो तीन तीन घंटे करना, this is a myth. I know personally people who spend hours in the gym but nothing is नो happening. रिजल्ट। I'm not saying jaldi honi chahiye progress. I'm just saying, see, if you have time, this is the best हाँ thing to हाँ। invest in, I would say. Rather than sitting and chilling on Netflix the चिलिंग ऑन entire time, नेटफ्लिक्स। if you are spending इधर gym में, वो ज्यादा better है. But I think you should have
a life outside of gym as well. Gym as Maybe well. explore other hobbies. Hmm. Maybe spend that time cooking or reading more. Your mind should Anything, be anything sharpened. of their choice as well. If you have a clear mind, you will have a clear body. You will know what to do with this body. I Hmm. think That is that depends people to people. उनकी priority क्या है? What they want to hmm. do. मतलब I know people Completely from the their gym choice. who run a business. So उनको ये कि मालिक है अभी वो कर सकते हैं. They have well established their Well business. या established. business women की बेटियां हैं या बेटे हैं जिनका well established business है, तो सुबह Hmm. भी जाएं शाम को भी जाएं कुछ भी करें, तो it is their choice. But I think they also should equally invest time on their nutrition. It all depends on personal time as well, personal choice and personal time. And yeah, priorities. That's the Yes. three key ways like we can take out. We are just heading to the last segment, okay? And which is the rapid fire round. Yeah, so I'll just ask quick questions and you just have to answer quickly without thinking a lot. So, shall we begin? Hmm. Like, as you are a kind of gym freak and you focus more on the diet, so are you a coffee or a tea person? I am not a coffee or a tea person. My I bad. rather I would rather go for milk. If I'm being Milk. honest, मेरे को Okay. दूध का ग्लास अच्छा लगता है, गरम दूध. ऊपर से बारिश आजकल बड़ी हो रही है ना, गरम Hmm. दूध, बादाम इलायची Yeah. डाल के. Taste. Moving next, like, what is your comfort food? मुझे ओट मील बड़ा पसंद है. आई एम अ बिग मीठा पर्सन. मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है. Same. चाहे वो 116 किलो का था और चाहे वो इधर हो, मैं कभी अपना मीठा नहीं छोड़ सकती. बट ये कि मैंने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं. और Hmm. रसगुल्ले का ऑल्टरनेटिव कैन फॉर मी बी ओट मील, और वो मैं Oatmeal. डिनर में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाती हूँ. प्रोटीन ओट्स मुझे बड़े पसंद है. Protein फ्रूट्स, oats. ड्राई फ्रूट्स, Dry डार्क fruits. चॉकलेट, थोड़ा पीनट बटर Mix. से डाल के. So, like, beside your work, your gym, your diet, what's your favorite movie of all time? Like, आई एम बैड एट इट ऑनेस्टली. मैं ना दादी अम्मा हूँ, पूरी की पूरी. okay, मेरे को आ जाती है 9:30 बजे नींद. एंड दैट इज द okay. मेजर टाइम जहां पे तुम थोड़ा नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो. Hmm. So if I have to watch something while I'm eating, I would again go back to Friends. I have watched Friends like a million times and I would not mind watching in another million. So Friends. Same, same. Like, moving next, like you said कि like movies में तो उतना interest नहीं है, like you don't have so much interest and all. But what about songs? Like, what's your favorite song? क्या हंसोगे अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे No, no. सॉफ्ट रोमांटिक गाने सुनना while I am working out बहुत पसंद है. मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल लाउड Yeah. सॉन्ग बैंग बैंग ये Hmm. वो. Yeah, नहीं, did ये that मुझसे नहीं DJ? होता है. Hmm. ये मुझसे नहीं होता है. आई एम अ कंप्लीट सॉफ्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक. while I am working out, I would rather listen to Punjabi music right now while I'm working. लेकिन when I'm working Opposite. out exercising, I need to have that calm music. शांति, प्यार भरे गाने, पुराने गाने, वो सब सुन सुन के वर्कआउट करने में जो मजा आता है मुझे पर्सनली, इट्स We need to know example, like anything. Just name a song. Just name a song. We need to know. गाना चल रहा है जरूर इंस्टाग्राम पे जरूर, और वो दिल लिबास कुछ तो है वो. तो जरूर गाना इज वेरी Okay. नाइस, आई रियली. और तेनू खबर नहीं, फ्रॉम दैट मूवी Munjia. मुंजा. Yeah, From, yes, I I that's don't a remember the beautiful song. movie exactly, but the song is a beautiful Yeah, it's song. beautiful, And that beautiful. song, I remember today I was hitting chest, and that song was on loop again and again. तेनू खबर नहीं है खबर, but I want to listen to that How did song you like? again. How did you manage like listening to this cool kind? Like, if I would be in your position, I'll just sit and just randomly just think like I will be just on another world. I'll just imagine myself on Yes, beautiful but the mountains problem and is I think I never had a relationship, so I never had a breakup. So I don't relate to this relate. Yeah. song, this lyrics. All I Hmm. relate to is the beat, Music, the softness. I am not softness. listening Yeah. to the lyrics much. I am Hmm. again, I can't relate to you, but I can relate to the vibe, the Vibe. softness, the calmness. I am relating more to that That. rather than the breakup. Yeah. Yeah. Same song, different feelings. So
we are just at the end. So, last question is, describe yourself in just 3 words. What will be? Ziddi, very Ziddi. ziddi. Annoying. I can be Okay. pretty annoying. Ziddi, annoying. And And what next? mature. I am 100% sure people my age have faced way too much than me. But jitna bhi I have faced, I think it has shaped me as a person who I am. And Hmm. I'm a really mature person. So that's, you can't figure that out maybe from how open I have been, but Hmm. I am. Okay, so 3 words is Ziddi, Ziddi, annoying, mature. annoying, and mature. Like 3 words, and three are like east west. These I know, right? three. I think that's a split personality. Okay, okay, Sunidhi. Like it was like it's felt great, like talking to you. Great talk to you as well. Thank you for giving me this opportunity.